Good morning, would be doctors. How is the Josh? Good. So, would be doctors, this is our 18th class फिजिक्स क्रैश कोर्स. इन क्लासेस में आपके साथ मैं टॉपिक्स की थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं और पिछले जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नीट में AIPMT में CBSE PMT में लास्ट 20 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं 26 जुलाई 2020 में वो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. मैंने आपके साथ वेक्टर्स डिस्कस कर चुका हूं, मोशन इन वन डायमेंशन डिस्कस कर चुका हूं, प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर चुका हूं, लॉज ऑफ मोशन डिस्कस कर चुका हूं, वर्क पावर एंड एनर्जी डिस्कस कर चुका हूं. अब जो मैंने आपके साथ टॉपिक शुरू किया हुआ है दैट इज सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ सर्कुलर मोशन की थ्योरी डिस्कस की थी, कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, तो आज हम उसकी कंटिन्यूटी में ही आगे चलेंगे. तो बच्चों, वुड बी डॉक्टर्स, ये जो मेरी सभी क्लासेस हैं इस राष्ट्र को समर्पित हैं, PM केयर फंड को समर्पित हैं और इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं. तो आज हम अपना इस लेक्चर का नया टॉपिक शुरू करने से पहले शांति पाठ करते हैं. ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेदि. ओम शांति शांति शांति. वुड बी डॉक्टर्स, मैंने कहा था कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और if a body is not moving in the uniform circular motion, in that case it is having two types of acceleration. One is the centripetal acceleration, another is the tangential acceleration. This centripetal acceleration is produced due to change in direction of motion of the particle, and tangential acceleration is produced due to change in speed of the body. This centripetal acceleration can, when a body is moving in a circular path, centripetal acceleration can never be zero, but tangential acceleration can be zero depending either if when the body is moving in a circular path with uniform speed, in that case tangential acceleration is equal to zero. So in this way, when a body is moving in a circular path, the total acceleration of the body A vector is equal to AC vector and AT vector. और ये AC और AT as they are perpendicular to each other, so modulus of A vector is under root of AC square plus AT square. This centripetal acceleration always acts toward the center of the circle, so this is also known as radial acceleration. This tangential acceleration always acts along the tangent of the circle, so this is also known as transverse component of acceleration. Clear? So this centripetal acceleration, this is equal to क्या था, that is equal to V square by R, that is equal to R omega square, that is equal to omega V, or that is simply AC vector is equal to omega vector cross V vector. Or this centripetal acceleration can be written as R 4 pi square upon T square or R 4 pi square F square. And tangential acceleration AT vector is equal to क्या था, alpha vector cross R vector. Here alpha is the angular acceleration. As I told you in last lecture, alpha vector, omega vector are acting along that axis which is perpendicular to the plane in which the particle is moving in a circular path, and all other vectors, AC vector, AT vector, V vector, R vector, all these vectors are existing in that plane. Therefore alpha vector and omega vector are perpendicular to your V vector, AC vector, AT vector, A vector एंड R वेक्टर. इन सभी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. AC और AT भी क्या है, परपेंडिकुलर हैं. V वेक्टर और AT वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं.
v वेक्टर और ac वेक्टर क्या है आपके पास परपेंडिकुलर है। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये याद रखना कि कौन से वेक्टर्स के बीच में कौन सा एंगल है। क्लियर? तो मैंने आपको एक डिफरेंट एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस की थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। एक चीज बच्चों याद रखो कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कंटिन्यूअसली चेंज। स्पीड इसकी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी वेक्टर भी इसका चेंज करेगा। वेलोसिटी वेक्टर चेंज करने से इसका मोमेंटम भी चेंज करेगा, मोमेंटम चेंज करेगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वेक्टर भी चेंज करेगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। लेकिन when a body is moving in a circular path with constant speed, there is no change in kinetic energy because the speed remains constant, no work is done, कोई वर्क डन नहीं होता। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, जीरो है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि when a body is moving in a circular path with uniform speed, what is the change in speed of the particle? And what is the first can be asked change in speed of the particle, second can be asked what is the change in velocity, change in magnitude of velocity of the particle, third can be asked what is the change in momentum of the particle, fourth can be asked what is the change in magnitude of acceleration of centripetal acceleration of the particle when it describes an angle थीटा। जब ये थीटा एंगल डिस्क्राइब करते हैं इन चारों में क्या चेंज होगा। अब देखिए पहला जो है व्हाट इज द चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, देयर इज नो चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सेकंड इट इज आस्क्ड व्हाट इज द चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो कभी भी कोई सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो आपके पास किसी भी एंगल थीटा के बाद इसका जो चेंज इन, सपोज करो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज हो रही है वो चेंज क्या आएगी, दैट विल बी रिमेंबर 2x sin थीटा बाय 2। क्या आएगी ये 2x sin थीटा बाय 2। हाउ इट कम्स, x कैन बी हियर, x क्या हो सकता है, x कैन बी v, x कैन बी mv, x कैन बी v स्क्वायर बाय r। व्हाट इज दैट, दिस इज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर? नाउ हाउ इट कम्स, जब चेंज निकालनी है किसी भी एंगल थीटा के ऊपर वो क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो दिस विल बी 2x स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, सो दिस बिकम्स 2x sin थीटा बाय 2। सो मैग्नीट्यूड चेंज इन स्पीड क्या आ गई 0, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा 2v sin थीटा बाय 2, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, दैट विल बी 2mv sin थीटा बाय 2, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 2v स्क्वायर बाय r थीटा बाय 2। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो किसी भी एंगल पे पूछा कि इट कैन बी आस्क्ड कि आपके पास जब इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री और इट कंप्लीट्स 1/4 ऑफ द सर्कल, तब क्या होगा, तब आप थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगर ये पूछा गया व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ ऑफ द सर्कल मींस इट इज मेकिंग एन एंगल 180 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दोगे, sin 90 1 बन जाएगा। तो इस तरह डिफरेंट एंगल्स के लिए पूछा जा सकता है। इन जनरल रिजल्ट मैंने आपको बता दिया कि इट कम्स 2x sin थीटा बाय 2। क्लियर? नाउ उसके बाद मैंने आपके साथ कहा था कि देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स कि व्हेन ए बॉडी इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ डेफिनेटली इट हैज रिक्वायर्ड द सेंटीपिटल फोर्स एंड दैट सेंटीपिटल फोर्स क्या है mv स्क्वायर बाय r, और किसके बराबर है mr ओमेगा स्क्वायर, और किसके बराबर है mr 4 पाई स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, और किसके बराबर है mr 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर के इक्वल है। तो आपके पास मैंने डिफरेंट एग्जांपल दी थी कि जैसे अर्थ क्या है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इट हैज रिक्वायर्ड द सेंटीपिटल फोर्स, इन दिस केस सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सन। मैं ये एग्जांपल इसलिए रिपीट कर रहा हूं, डायरेक्ट इनके ऊपर इन इक्वेशंस के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया था mv स्क्वायर बाय r, दैट इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r स्क्वायर। r is the radius of the orbit in which it is revolving, capital M is the mass of sun, small m is the mass of earth.
Similarly, if a satellite is revolving around the earth, in that case it has required the centripetal force. What is that? mv square by r. This is provided by gravitational force of attraction between the earth and that satellite, that is equal to capital G, capital M, small m by r square. Here small m is the mass of the satellite, capital M is the mass of the earth. From here you can calculate velocity with which this satellite is revolving. Next, I told you that when a charged particle is projected in a magnetic field, in a uniform magnetic field perpendicular to its direction, it is adopting a circular path. In that case, centripetal force provided by Lorentz magnetic force. तब हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही थी? mv square by r is equal to qvb. V is the speed with which it is revolving, v is the strength of magnetic field, q is the charge of the particle which is revolving. Next, I told you that when an electron is revolving around a nucleus in an atom, in that case the necessary centripetal force required by the electron is provided by electrostatic force of attraction between the electron and nucleus. तो क्या इक्वेशन बन गई थी? mv square by r. Here m is the mass of electron, that is equal to क्या आ गया था? 1/4 pi epsilon naught into क्या आ जाएगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन into चार्ज ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर. सो दीज आर द डिफरेंट इक्वेशंस. मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि जहां पे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट फोर्सेस. क्लियर? उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस की थी. पहली एग्जांपल मैंने डिस्कस की थी कि व्हेन ए vehicle has to take a turn along the curved level track. In that case, necessary centripetal force is required, and that centripetal force is provided by frictional force between the tires and road. और वो फ्रिक्शन और उस समय क्या था? व्हीकल कैन टेक ए टर्न along this curved level track without skidding. तो वो वेलोसिटी क्या आ गई थी? That is greater than or equal to under root of mu r g, where mu is the coefficient of friction, r is the radius of that track, g is the acceleration due to gravity. और मैंने यहाँ पे एक बताया था कि when a vehicle is taking a turn without overturning, और क्या कहा था कि in case of overturning the wheels of the vehicle is losing the contact. उसके लिए क्या स्पीड बताई थी? मैक्सिमम स्पीड विद विच इट कैन टेक द टर्न, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर ए अपॉन एच, where 2a is the distance between the wheels, h is the height of the center of gravity of the vehicle from the road. फिर मैंने कहा था बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स की आपको एग्जांपल डिस्कस की थी कि बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स क्या है कि when raising of the roads from their edges is called banking of tracks. By doing so, in that case when vehicle is taking a turn of such type of roads, so centripetal force is not, it is necessary that it has required it is provided by frictional force. In that case, centripetal force is coming from one component of its normal action. One component of the normal action itself is providing the centripetal force. In that case, it is speed with which it is taking the turn on the bank track, that is equal to under root of क्या आ गया था? r g tan theta, where r is the radius of that curved track, theta is the angle of banking. और ऑप्टिमम स्पीड क्या आ गई थी? अगर वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स भी है, that also will help in providing the centripetal force. उस केस में वेलोसिटी क्या आ गई थी? that is equal to under root of r g tan theta, r g ब्रैकेट में mu plus tan theta divided by 1 minus mu tan theta आ गया था. नेक्स्ट आपके साथ मैंने कहा था कि when a cyclist is taking a turn, उस समय क्या है? he is bending his cycle. तो by bending क्या होता है? one component of the normal action is providing the centripetal force. तो उस केस में क्या होता है? कितने एंगल के साथ वो बेंड करता है? that theta is equal to tan inverse v by r g. और मैंने कहा था कि रेलवे के जो जहां पे टर्निंग पॉइंट के ऊपर उनकी रेल्स ट्रैक भी क्या है? they are raised from their edges. तो that is उस केस में भी क्या है? that is providing the one component of the normal action is providing the centripetal force. तो वहां पे भी क्या आ गया था? tan theta is equal to v square by r g आ गया था. फिर मैंने आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस की थी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की. तो आपको क्या कहा था कि व्हेन a body is moving in a vertical circle without any एक स्ट्रिंग के साथ मास अटैच्ड है, it is moving in a vertical circle without any slack in the string. In that case, the minimum velocity required at the bottom
टू मूव इन ए वर्टिकल सर्कल इज अंडर रूट ऑफ 5gr और टॉप के ऊपर कोरस्पोंडली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ gr, मिड पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी अंडर रूट ऑफ 3gr. When it is moving in a vertical circle without any slack in the string, in that case tension at the lowest point in the string will be highest, that is equal to क्या कहा था मैंने, that is equal to 6 mg at the lowest, at the highest point tension in the string is mg, at the mid point the tension is 3 mg. जनरल फार्मूला मैंने क्या कहा था कि velocity at the lowest point is under root of x plus 4gr where x is greater than or equal to 1, and at the mid point is under root of x plus 2gr, at the highest point is under root of xgr, and tension at the lowest point is under root of y plus 6 mg, and at the highest point is under root of y mg, and at the mid point is under root of y plus 3 mg. और मैंने क्या कहा था कि here y is any number which is greater than or equal to 0, और x और y में मैंने क्या रिलेशन बताया था कि here x is equal to क्या आ गया y plus 1 के इक्वल आ गया. तो ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस की थी. यहाँ पे कहा था कि when a body is moving in a vertical circle without any slack in the string, in that case the change in kinetic energy between the lowest point and highest point क्या बताई थी मैंने 2 mgl, और यही क्या change in potential energy थी, that is equal to 2 mgl where l is the length of the string. And correspondingly मैंने आपको बताया था कि when it is moving in a vertical circle without any slack in the string, तो उसके में आपके पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या कहा था, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होनी है वही किसके इक्वल होनी है, दैट इज इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होनी है, और वो किसके बराबर होनी है, दैट इज इक्वल टू 2 mgl. और कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंस इन द टेंशन द स्ट्रिंग बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट वो क्या आ जाएगी 6 mg आ जाएगी. तो ये चीजें मैंने आपके साथ सारी इसमें आपके साथ मैंने डिस्कस किया था. तो कुछ मैं आपके साथ प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो फर्स्ट में आपके साथ एक प्रॉब्लम है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. कहता है इफ एन, बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 26 जुलाई को, लिख लीजिए बच्चे, दिस इज द क्वेश्चन फॉर 26 जुलाई 2020 के लिए. इफ एन इंक्लाइन प्लेन एंड्स इनटू ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस स्मॉल r, then height from which the body should slide from then inclined plane in order to complete the circle is. The question is, एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन से, जिस इंक्लाइन प्लेन से फ्रीली फॉल करती हुई आती है, और क्या होता है उसके बॉटम के ऊपर आकर उसको क्या मिल रहा है, एक लूप मिल रहा है. वो कहता है व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ दिस लूप, what should be the height of this inclined plane so that when it will reach at the bottom, जब ये bottom के ऊपर पहुंचेगी तो इस loop में it will move in a vertical circle without any losing the contact. ये इस height से h से आ रही है और ये body यहां से freely fall करती हुई आ रही है. तो ये loop जो है इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है. कहता है what should be the value of this h so that it will be able to move in this vertical circle. अब देखो जब ये बॉडी फ्रीली फॉली यहां पे पहुंचेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh. अगर इसने एक वर्टिकल लूप में मूव करना है तो व्हाट वेलोसिटी इट हैज रिक्वायर्ड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5gr. तो h की वैल्यू क्या होगी, h शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/2gr. ये होना चाहिए. h क्या होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 5/2r. g तो क्या आ जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे. अगर इतनी हाइट से आती है या इस हाइट से ग्रेटर आती है, 5/2r से ग्रेटर आती है, जब ये बॉडी बॉटम के ऊपर पहुंचेगी तो इट विल मूव इन वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल इस लूप को पूरा कर सकेगी. क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट आपके पास है, कहता है व्हेन ए कार मूव्स ओवर ए कन्वेक्स ब्रिज, it require when a car moves over a convex bridge whose radius is r, कहता है what is the apparent weight of the car when it is at the highest point of that convex bridge. इस convex bridge के जब highest point के ऊपर है उस समय what will be the weight of the car, where दिया क्या हुआ है, mass of the car is m and it is moving with uniform speed v, और कन्वेक्स ब्रिज का क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, व्हाट इज दैट, r.
मीन्स इट इज कि जब आपके पास एक बॉडी इस कन्वेक्स ब्रिज के ऊपर मूव कर रही है, जिस कन्वेक्स ब्रिज का रेडियस कितना है, r है, इस कन्वेक्स ब्रिज का रेडियस कितना है, r है, और किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, v स्पीड के साथ मूव कर रही है, और बॉडी का मास कितना है, m है। कहता है व्हेन इट इज एट द टॉप ऑफ दिस कन्वेक्स ब्रिज, तो इसका वेट कितना होगा, इस बॉडी का वेट कितना होगा। देखिए जब ये बॉडी टॉप के ऊपर होगी, इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है, बॉडी का नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और इसकी नॉर्मल एक्शन किधर एक्ट कर रही है, ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। नाउ व्हाट इट हैज रिक्वायर्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगी, mg minus r, that will provide the centripetal force। So ये इसकी इक्वेशन बनेगी। R is a normal action और this is the normal action ही क्या होता है, apparent weight होता है। तो इसका apparent weight क्या आएगा, mg minus mv square by r। This is very important question कि when this body is at the top point of this convex bridge, at that instant its apparent weight will be mg minus mv square by r। तो means इसका apparent weight actual weight से कम होगा। और अब यही क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर एक कन्वेक्स ब्रिज की बजाय कनकेव ब्रिज हो, इंस्टेड ऑफ कन्वेक्स ब्रिज इट इज ए कनकेव ब्रिज, इस तरह से ब्रिज है आपके पास, तो कनकेव ब्रिज के जब ये लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है, तब इसका अपरेंट वेट कितना होगा। उस समय क्या है, इसका वेट किधर एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, नॉर्मल एक्शन किधर है, इस तरफ है। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी, r माइनस mg इज इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r। तो इसका अपरेंट वेट क्या होगा, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। दिस इज द अपरेंट वेट ऑफ दिस बॉडी व्हेन इट इज एट द बॉटम ऑफ दिस कनकेव ब्रिज। तो मींस जब कन्वेक्स ब्रिज के ऊपर है तो इसका वेट एट द हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसका वेट डिक्रीज कर जाता है, जब ये लोएस्ट पॉइंट के ऊपर है तो इसका इस बॉडी का अपरेंट वेट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कहता है काइनेटिक एनर्जी K ऑफ ए मूविंग पार्टिकल अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस r depends upon the distance covered s that is given as k is equal to as square where a is constant। कहता है what is the force acting on the particle, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कितनी एक्ट करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसी भी डिस्टेंस s के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, k is equal to as square। मींस ये जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस काइनेटिक एनर्जी इज वेरिंग विथ डिस्टेंस s। ये काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस s के साथ वेरी कर रही है। यहाँ पे a क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। तो इट इज आस्क्ड व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो ये बच्चों वुड बी डॉक्टर्स, यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या गलती कर देते हैं, मल्टीपल चॉइस फोर्स पूछी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सर्कुलर मोशन में अगर तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिया हुआ है, फोर्स पूछी है, तो दैट फोर्स विल बी ओनली सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर नहीं मेंशन है कि कौन सा मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, नहीं मेंशन है, तो अंडरस्टूड है कि नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो जब उसने फोर्स पूछी है तो मींस टोटल फोर्स पूछी है, तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट कर रही है, टेंशन फोर्स भी एक्ट कर रही है। तो अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, तो ये तो बड़ा अंडरस्टूड हो गया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। काइनेटिक एनर्जी किस में वेरी कर सकती है, सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म में वेरी करती है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डिस्टेंस के साथ वेरी ही नहीं कर सकती थी। तो इसलिए यहाँ पे तो आपके पास अगर इसने पूछा तो फोर्स कौन सी होगी, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। तो टोटल फोर्स इसके ऊपर जो एक्ट करेगी दैट विल बी इक्वल टू Fc स्क्वायर प्लस Ft स्क्वायर, इतनी फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या दी हुई है, a स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू a s स्क्वायर। देयरफॉर mv स्क्वायर क्या आ जाएगा,
दैट इज इक्वल टू 2a² देयरफॉर सेंटीमीटर फोर्स क्या आ जाएगी mv²/r, दोनों तरफ r से डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर सेंटीमीटर फोर्स क्या आ गई 2as²/r, दिस इज द सेंटीमीटर फोर्स। अब रही बात आपके पास टेंजेंशियल फोर्स की। बच्चों याद रखो फोर्स जो होती है दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद डिस्टेंस। मैं पहले भी कई बता चुका हूं आपको कि फोर्स क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट होती है, du/dr होती है। यहाँ पे एनर्जी क्या है आपके पास काइनेटिक एनर्जी है और r क्या है डिस्टेंस है, तो फोर्स क्या आएगी आपके पास दैट इज इक्वल टू dk/ds, तो दैट इज इक्वल टू ddS ऑफ as², a इज ए कांस्टेंट, आप s² की डिफरेंशिएशन करोगे इट कम्स 2s, तो दिस बिकम्स 2as। तो आपके पास टेंजेंशियल फोर्स क्या आ गई 2as, सेंटीमीटर फोर्स क्या आ गई 2ar²/2as²/r। आप दोनों वैल्यूज Fc और Ft की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पे टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आ जाएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, इट इज आस्क्ड इन नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज दैट क्वेश्चन, कहता है अ कार इज नेगोशिएटिंग ए कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस कैपिटल R, द रोड इज बेंट एट एन एंगल थीटा, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड रोड इज म्यू, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन द कार रोड इज। अब देखो मैंने आपको कहा कि जब इट इज एन एग्जांपल ऑफ बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स, बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स के ऊपर अगर आपके पास वहां पे जो रोड है वो रफ है, तो रफ रोड के केस में फ्रिक्शनल फोर्स विल आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग द सेंटीमीटर फोर्स, तो वेलोसिटी और इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए इसने जो पूछा ही क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए, व्हाट इज दैट मैक्सिमम वेलोसिटी, अंडर रूट ऑफ gr म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये आपके पास पहला ही चॉइस दी हुई है, तो करेक्ट आंसर इज ए। क्लियर, नेक्स्ट इट इज आस्क्ड इन CBSE AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार ऑन ए रोड टर्न रेडियस इज 30 मीटर if the coefficient of friction between the tire and road is 0.4 meter। coefficient of friction दिया हुआ है between the tire and road कितना दिया हुआ है 0.4 दी हुई है। क्या पूछा क्या गया है, मैक्सिमम स्पीड पूछी गई है, तो मैक्सिमम स्पीड क्या बताई है मैंने, क्या होती है अंडर रूट ऑफ म्यू gr, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.4, g कितना है 10, 0.4 इंटू 10 क्या बन जाएगा 4, मल्टीप्लाई बाय r कितना दिया हुआ है 30, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा 300। तो आंसर अंडर रूट ऑफ 300 का जो अंडर रूट बनेगा दिस विल बी नियरली इक्वल टू आपके पास दिस बिकम्स 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10 दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट बिकम्स 120 का जो अंडर रूट बनेगा दिस इज नियरली इक्वल टू 11 के करीब बनेगा। तो आंसर दिया हुआ है यहाँ पे 10.84 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन नीट 2016 का क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, कहता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है ए स्टोन इज टाइड टू ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is whirled in a vertical circle with other end of a string as center. A certain instant of time, stone is at the lowest position and has a speed u. The magnitude of change in velocity as it reaches a position where the string is horizontal. अब देखिए क्या पूछा गया है, आपके पास एक स्ट्रिंग है। मैं इसके लिए पहले आपको एक बहुत अच्छे से फार्मूला बताता हूं। अगर आपके पास एक ये स्ट्रिंग है और ऐसे हैंग की हुई है, यहां पे आप इसको u वेलोसिटी देते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एंगल थीटा के ऊपर जाकर
इसकी जो वेलोसिटी बन जाती है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बन जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चल कि किसी कोई मास m एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड है, इसकी लेंथ कितनी है l है। अगर लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आप इसको स्पीड u देते हो तो किसी भी एंगल थीटा के ऊपर जाकर इसकी स्पीड v क्या होगी, अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वेरी सिंपल, कहां से आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, v इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2as, a is here minus g, s is the distance traveled in vertical direction that is h, और इस h को हमने क्या लिख लिया, इस l की फॉर्म में लिख लिया that h comes l into 1 minus cos theta। क्लियर। अगर ये बॉडी किसी एंगल थीटा के ऊपर पड़ी हुई है, किसी एंगल थीटा के ऊपर पड़ी हुई है और वहां से आपको छोड़ते हो तो आपके पास बॉटम के ऊपर आकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बॉटम के ऊपर आकर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मींस कि आपके पास यहां से किसी एंगल थीटा से किसी बॉडी को यहां से ड्रॉप करते हो, ठीक हो गया। तो ये पूछा है कि जब ये बिल्कुल बॉटम के ऊपर पहुंचेगी, रेस्ट से ड्रॉप किया है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, रेस्ट से ड्रॉप किया, फाइनल वेलोसिटी पूछनी है तो सिंपल हमने क्या किया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, u इज 0 तो v क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 2as, a इज हियर g, s इज h को क्या लिख लिया इन टर्म्स ऑफ l लिख लिया, दैट इज l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। किस क्वेश्चन में पूछा है, स्टोन इज टाइड टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l वर्ल्ड इन ए वर्टिकल सर्कल विद अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज द सेंटर, मतलब अदर एंड इसका क्या है, सेंटर है। कहता है एट द सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्टोन इज एट द लोएस्ट पोजीशन, क्लियर, हैज ए स्पीड, यहां पे इसकी स्पीड कितनी है u, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एज इट रीचेस द पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। अब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल कहां पे हो जाएगी, यहां पे हो जाएगी, क्लियर। जब ये यहां पे पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 90 डिग्री, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस 90, कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल होगी तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gl। तो इसने पूछा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, हियर वेलोसिटी इज u, here velocity is under root of u square minus 2gl, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ आपने दो वेक्टर्स के बीच में निकालना है, तो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये चेंज के लिए फार्मूला है। तो थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। व्हाट इज हियर a इज हियर u, व्हाट इज हियर b इज हियर अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gl, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आ जाएगा, u स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा v स्क्वायर क्या बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gl, क्लियर। तो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2u स्क्वायर माइनस 2gl और दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू u स्क्वायर माइनस 2gl। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस एट द मिड पॉइंट और वेयर द स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था, एक स्ट्रिंग थी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर, उसको u स्पीड दी, कहता है जब वो स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होगी तो वो उसकी व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमने कैसे निकाल लिया, इनिशियल वेलोसिटी देख ली, हॉरिजॉन्टल होगी तब उसकी फाइनल वेलोसिटी देख ली, चेंज के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, वहां पे क्या बन गया आपके पास अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बन गया, तो u की वैल्यू u ही है, v की वैल्यू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gl आ गई अंडर रूट, तो वो सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपके पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ गई व्हेन दिस स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, क्लियर। तो इस तरह से आपके पास ये सर्कुलर मोशन की छोटी छोटी सी प्रॉब्लम पूछी जाती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके पास, इट कैन बी आस्क्ड इन 26 जुलाई को आपके पास ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज कि बॉडी इज ए व्हाट इज द
what is the ratio of the angular velocity of a second hand, minute hand, hour hand and of earth? What is the question? It can be asked. मैंने देखो 4 की रेशियो पूछ ली, हो सकता है 26 जुलाई को आपको 2 की रेशियो पूछ ली जाए कि आपके पास सेकंड हैंड और मिनट हैंड की पूछ ली जाए, या सेकंड हैंड और आवर हैंड की पूछ ली जाए, मिनट हैंड और आवर हैंड की पूछ ली जाए, या आवर हैंड और अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो पूछी जाए. क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड अर्थ. देखो सेकंड हैंड का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड हैंड? वुड बी डॉक्टर, सेकंड हैंड मींस जो आपके पास आपके क्लॉक की सेकंड वाली नीडल है उसकी एंगुलर वेलोसिटी. आप जो सेकंड वाली नीडल है वन रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है? इट कंप्लीट्स इन 1 मिनट, इट टेक्स 60 सेकंड. तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2 पाई अपॉन 60. क्लियर? नाउ और जो आपके पास मिनट हैंड वाली नीडल है, दिस मिनट हैंड वाली जो नीडल है इट कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन हाउ मच टाइम? इन 1 आवर. तो मिनट हैंड वाले की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? दैट इज इक्वल टू 2 पाई मींस 1 आवर. 1 आवर मींस 60 मिनट मींस 60 into 60 सेकंड. क्लियर? इफ इट इज नाउ आर हैंड की जो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी वो कितने टाइम में एक रोटेशन पूरा करती है? दैट कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 12 आवर. तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 12 into 60 into 60. और अर्थ की क्या होगी? अर्थ कितने टाइम में पूरा करती है? 24 आवर में. 24 into 60 into 60. Clear? So these are the angular velocity of second hand, minute hand, hour hand and अर्थ. कैसे कैलकुलेट की मैंने? This is calculated with the help of the formula 2 pi upon angular velocity क्या आती है? 2 pi upon capital T, where T is the time period, 2 pi is the angular displacement. One rotation में angular displacement क्या होती है? 2 pi होती है. तो सेकंड हैंड के लिए मैंने T की वैल्यू 60 ले ली, 60 सेकंड ले ली. मिनट हैंड के लिए T की वैल्यू 60 into 60 सेकंड ले ली. आवर हैंड के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू जो है 12 into 60 into 60 होती है. अर्थ के लिए जो टाइम पीरियड है दैट इज 12 into 60 into 60 है. तो इनकी हम जिसकी भी रेशियो पूछी है तो ये रेशियो क्या आ जाएगी? दिस रेशियो कम्स 1:1/60 is to 1/12 into 60 is to क्या आ जाएगा? 1/24 into 60. ये रेशियो आ जाएगी. 1 is to 1/60 is to 1/12 into 60 into. Clear? तो this is the, or we can say तो ये जो रेशियो है तो यहां से बड़ा क्लियर है. सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? सेकंड हैंड की. ये भी ऐसे पूछा जा सकता है किसकी सबसे ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी? सबसे ज्यादा सेकंड हैंड की. उससे कम एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? मिनट हैंड की. उससे कम एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? आवर हैंड की. सबसे एंगुलर वेलोसिटी किसकी है? कम है अर्थ की. मींस सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड हैंड is greater than angular velocity of minute hand, is greater than angular velocity of hour hand, is greater than the angular velocity of earth. तो ये इसकी रेशियो है. और समटाइम सिंपल एक ही एंगुलर वेलोसिटी पूछी जा सकती है. अब उसमें भी एक चीज आपने ख्याल रखना होगा, अगर यूनिट्स दिए हुए हैं रेडियंस पर सेकंड तब तो आपने पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है. अगर यूनिट्स दिए हुए हैं डिग्री पर सेकंड तब आपने पाई की वैल्यू 180 डिग्री सब्स्टिट्यूट करनी है. दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यूनिट्स क्या दिए हुए हैं रेडियंस पर सेकंड तब पाई की वैल्यू 22/7. अगर यूनिट्स क्या दिए हुए हैं डिग्री पर सेकंड दिए हुए हैं तब पाई की वैल्यू आपने क्या लेनी है? 180 लेनी है. सो थैंक यू वेरी मच वुड बी डॉक्टर्स. जैसे मैंने आपको शेड्यूल दिया हुआ है 1 मंथ का, आपके साथ मैंने आपको 8 टेस्ट दिए हुए हैं मैंने. तो आप सब बच्चों ने उनमें से मेरे सभी बच्चों की रिपोर्ट आ रही है. तो सब बच्चों ने उनमें से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल टेस्ट उनका ऑलमोस्ट खत्म. 6 टेस्ट हो गए हैं. 1-2 टेस्ट उन सब बच्चों के रह गए हैं. तो जैसे ये टेस्ट खत्म होते हैं मैं आपको नेक्स्ट 15 डेज का शेड्यूल दूंगा आपने क्या कैसे करना है.
और मैं भी आपके साथ जो नीट में आपके पास 45 क्वेश्चन आने हैं फिजिक्स में से +1 और +2 में, उन 45 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट मैं 6 या 7 जिन टॉपिक्स में से 6 या 7 क्वेश्चन आने हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो आपकी अपनी स्पीड है, मेरी भी अपनी स्पीड है, हम दोनों साथ साथ चलेंगे तो एक बहुत अच्छा आपका काम हो जाएगा। तो आई होप कि आप बहुत अच्छी तरह जो मैंने आपको शेड्यूल दिया था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आप सभी चल रहे होंगे और आपका मोराल उससे क्या होगा, अप होगा। थैंक यू वेरी मच। सो वुड बी डॉक्टर्स, हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया। सो वुड बी डॉक्टर्स, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागृत रहिए, जागरूक रहिए। धन्यवाद।